Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. As I record this video on February 6th, 2026, gold and silver price are showing huge fluctuations. So before going to today's presentation, let us see the gold and silver prices, how they are behaving right now. So I go to this COMEX Gold Live. Now see, gold is showing, this is just one day change, minus 2.47%, and if you look at silver, this is almost 10% down since last night. This is 10% down, and if you see this chart, huge down then up, while silver, if you see silver is showing continuous decline. तो क्वेश्चन ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत शोर मच रहा है गोल्ड सिल्वर, or investors are losing a lot of money in this gold and silver. So where we stand, lekin before I proceed further, let me tell you once again, this video is only for educational purpose, or today's specific video that deals only with gold. देखो इसमें कोई आपको सजेशन नहीं दी जा रही कि भी ये लो ये ना लो. What I am going to do, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है. दिस इज द रिपोर्ट गोल्ड एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स 2026. मैं इस रिपोर्ट पे कंसंट्रेट करने वाला हूं. गोल्ड एज स्ट्रेटेजिक एसेट 2026 एडिशन लेटेस्ट रिपोर्ट है. सबसे पहले तो व्हाट इज दिस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? दिस इज established in 1987, if I'm not wrong. It is established in 1987 by group of miners, और ये वर्चुअली गोल्ड की स्टडी करती है और गोल्ड के बारे में डिफरेंट टाइम टू टाइम ये आपको इंफॉर्मेशन देती है. और लेटेस्ट रिपोर्ट इनकी आई है 2026 एडिशन, गोल्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट. नो, व्हाट इज दिस गोल्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट? कि ओवर द डिफरेंट एसेट क्लास, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिल्वर, गोल्ड, विच वन इज सेफ? कैसे इसको गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स के रूप में हम रिकॉग्नाइज करते हैं. दिस इज माय presentation for today, and before I start my presentation, let me tell you very frankly that today's presentation is entirely based on this World Gold Council report, and I have quoted from where we have drawn this data, and all the data is from this World Gold Council report, which I will discuss with you. And basically the topic will be what makes gold a strategic asset, कि gold एक strategic asset के रूप में क्यों recognize किया जाता है. So let us begin with our presentation. Presentation is this: gold as a strategic asset 2026, and again to remind you that this is World Council report, latest report on this gold, and they consider why they say that gold is a strategic asset. So देखते हैं. देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई बहुत ज्यादा इस टाइम पैनिक सिचुएशन है गोल्ड सिल्वर, खासकर जो गोल्ड और सिल्वर और स्पेशली सिल्वर के इन्वेस्टर्स पे. तो और बहुत अनसर्टन था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है. तो क्वेश्चन ये होता है कि इन एसेट्स में, चाहे बॉन्ड्स हैं, चाहे शेयर्स हैं, चाहे ये गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, कहाँ एक सेफ हेवन कौन सा है, इसमें कहाँ सेफ बेट रहेगी. सो वी बिगिन. दिस रिपोर्ट सेज दैट गोल्ड इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट्स and it will protect your assets like anything. Let us see how they say this gold is a strategic asset. So again a statement that current presentation is based on World Council report gold as a strategic reserve 2026. Now we begin. Gold as a strategic asset. They say gold is a strategic asset because three things: it delivers long-term returns, it improves diversification, it provides liquid, or in fact gold is as good a liquid asset as cash. देखो क्या लिखा है, gold is a highly liquid asset
which is no one's liability, carries no credit risk, and is scarce. Historically, preserving its value over time, gold can enhance a portfolio in three ways. कि अगर आप गोल्ड होल्ड करते हो तो ये आपके पोर्टफोलियो को तीन तरह से एनहांस कर सकता है. इट विल डिलीवर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, improve diversification and providing liquidity. And in today's presentation देखो यही है, returns, gold can enhance portfolio in three ways. Returns, it will give you return, it will diversify your portfolio, and it is liquid. So we are going to assess this three things, how the gold is acting like for these three things: returns, diversification and liquidity. सबसे पहले, it is a long term source of return. Now this chart, very beautiful chart, they have given, World Gold Council, a long term source of return. This again source is page number 4, Gold Strategic Reserve 2026 report. Now what does this says? देखो इसमें यूएस कैश लिया हुआ है, यूएस के स्टॉक्स लिए हुए हैं, गोल्ड लिए, ट्रेजरीज लिए हैं, ईएम स्टॉक्स लिए, ग्लोबल स्टॉक्स लिए, कमोडिटीज लिए, डिफरेंट एसेट क्लास ली है. और इसमें आपको पास्ट 1, 3, 5 एंड 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स रिटर्न्स दिखाई गई हैं. 20 ईयर्स में देखो गोल्ड इज दिस, 20 ईयर्स में गोल्ड टॉप पे है, 10 ईयर में गोल्ड टॉप पे है, 5 ईयर में गोल्ड टॉप पे है, 3 ईयर में गोल्ड टॉप पे है, और पिछले एक साल में तो आपको पता ही है कि गोल्ड का प्राइस एकदम जंप किया है. कि ओवर द डिफरेंट एसेट क्लास ये गोल्ड जो है सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है. पहली बात तो ये है, देखो रिटर्न ओवर पास्ट 1, 3, 5, 10 एंड 20 कि 20 ईयर्स में ये रिटर्न दिया, 10 ईयर्स में ये दिया, ऑलमोस्ट देखो 20 ईयर्स में ओवर 10%, 10 ईयर्स में दिस इज अगेन 11-12%, देन दिस 5 ईयर्स में अगेन इट इज शोइंग गुड रिटर्न्स. एग्जैक्ट परसेंटेज इसकी आती है नियर अबाउट 20% के करीब आ रही है. देन दिस एंड दिस इज ऑलमोस्ट 70% रिटर्न इट इज गिविंग, दैट इज 1 ईयर. तो सबसे पहली बात तो स्टैब्लिश होगी कि ओवर द डिफरेंट एसेट क्लास गोल्ड गिव्स मैक्सिमम रिटर्न. और गोल्ड के बाद जो बार जो ज्यादा चमक रहा है वो ये है, दिस इज यूएस स्टॉक्स, दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स. और यहां पर आकर ईएम स्टॉक ये ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं. तो पहली चीज जो इस्टेब्लिश की हमने कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में गोल्ड स्टैंड्स अबव ऑल द एसेट क्लास, ये पहली बात. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो बहुत ही बढ़िया ये रिपोर्ट आई है. देखो फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें जो जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस रिपोर्ट, अदरवाइज आउट एंड आउट आई हैव ड्रॉन दिस फ्रॉम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट. देखो गोल्ड हैज बीन लेस वॉलेटाइल देन मेनी इक्विटी इंडेक्सेस, अल्टरनेटिव्स एंड कमोडिटीज. अब देखो इसमें ये स्टॉक्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं, और इनका अगर आप देखो ये गोल्ड है बीच में, ये पूरी फिगर नहीं बने हुए, गोल्ड को हमने ये येलो बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है. अगर इसमें देखो सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल रहा वो है क्रूड ऑयल, देन प्राइवेट इक्विटी इज इक्वली वॉलेटाइल. लेकिन इसमें आप देखो ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड्स को छोड़ दो तो ये गोल्ड जो है इसकी वॉलेटिलिटी लेस देन 20% रही है ओवर डिफरेंट ईयर्स. कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी लेस देन 20%, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 20% अप डाउन होता है. वॉलेटिलिटी इंडेक्स इसका 20% शो कर रहा है. सो पहली बात कि रिटर्न सबसे ज्यादा है. दूसरा कि ये जो रिटर्न्स हैं ये वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज है आपका कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, सो वॉलेटिलिटी भी कम है. देन नेक्स्ट हम आते हैं, गोल्ड हिस्टोरिकली रैलीज इन पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन. देखो कि अगर इन्फ्लेशन हो, जितनी लो इन्फ्लेशन होगी गोल्ड का रिटर्न, देखो नॉमिनल रिटर्न, रियल रिटर्न. नो व्हाट इज दिस नॉमिनल रिटर्न? ये है विद इन्फ्लेशन एंड दिस इज कीपिंग आउट इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न. तो इसमें आप क्या देखते हो कि नॉमिनल एंड रियल रिटर्न
जहां लो इन्फ्लेशन है वहां बहुत कम रिटर्न्स है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन लेस देन 2% है तो ये रिटर्न है लेस देन 5%, और अगर ये मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो ये 10% तक नॉमिनल, और रियल रिटर्न भी 7-8%। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन मोर देन 5% है तो आप देखो कि 25% आपका नॉमिनल रिटर्न है विद इन्फ्लेशन, अगर 25% है, और अदरवाइज 15%। कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है गोल्ड का रिटर्न भी बढ़ता जाता है, गोल्ड से जो आपको रिटर्न मिलता है वो ज्यादा मिलता है इन बोथ इन रियल टर्म्स एज वेल एज नॉमिनल टर्म्स। सो अभी तक क्या निकला कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो एसेट्स डिफरेंट एसेट क्लास में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। दूसरा, ये वॉलेटाइल कम है, और तीसरा, ये जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है गोल्ड का रिटर्न भी बढ़ता जाता है, चाहे वो रियल टर्म्स में है चाहे वो नॉमिनल टर्म्स में है। देन द परचेजिंग पावर ऑफ मेजर करेंसीज हैज इरोडेड सिग्निफिकेंटली रिलेटिव टू गोल्ड। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, ये डिफरेंट करेंसीज को दिखाया गया, यूएस डॉलर को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, सिंगापुर डॉलर को, यूरो, देन रशियन रूबल, और ये गोल्ड को अगर हम लें जनवरी बेस मानकर 100 बेस मान लें तो इस बेस के कंपैरिजन में अगर आप देखो बाकी सब करेंसीज की वैल्यूज ऑलमोस्ट डिक्लाइन कर, ऑलमोस्ट क्या 100%। एक बीच में जरूर एक पीरियड है जिसमें ये डॉलर थोड़ा सा गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिखा रहा है, करेंसी की वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो ये दिस होल ऑफ दिस प्रोसेस कि हर करेंसी जो है गोल्ड के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू गिरी है। दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मेजर करेंसीज commodities has eroded, commodities and currencies had eroded significantly relative to gold, कि गोल्ड तो बाकी करेंसीज जो है इसके मुकाबले में गिरी हैं। ठीक है, अगेन ये इंडिकेट करता है कि गोल्ड का वर्थ क्या है, कि गोल्ड कम गिरता है, करेंसीज की वैल्यू, कमोडिटीज की वैल्यू ज्यादा गिरती है। दिस इज थर्ड अगेन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, कहता है कि वर्ल्ड में बहुत ऐसे पीरियड्स आए जिसमें अनसर्टन हैपनिंग्स हुई, बबल्स क्रिएट हुए, लेकिन अब देखो इसमें ये दिखाया डॉट कॉम बबल, 9/11, 2002 रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन, सॉवरेन डेट क्राइसिस 1, 2, ब्रेक्सिट, 2018 पुल बैक, कोविड, 2022 पुल बैक, टैरिफ अनसर्टेनिटी। इसमें 3 चीजें ली गई हैं, ग्लोबल स्टॉक्स लिए गए, ब्लू कलर इसका यूएस ट्रेजरीज एंड येलो गोल्ड। अब इसमें क्या देखते हो, द गोल्ड प्राइस टेंड टू इंक्रीज इन पीरियड ऑफ, जब रिस्क होता है तो सबसे ज्यादा जो सेफ क्लास है वो गोल्ड है। देखो ये रिस्क में ये सारे डाउन दिखा रहे हैं स्टॉक्स, एक पीरियड है जिसमें गोल्ड भी डाउन हुआ है, लेकिन ये डाउन तो हुआ है लेकिन दूसरे एसेट्स के मुकाबले में सिर्फ इसमें ये यूएस ट्रेजरीज इस डॉट कॉम बबल में बढ़ी हैं। अदरवाइज अगर आप देखो सब में गोल्ड जो है, गोल्ड प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज इन पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक, जब रिस्क आता है तो गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जब भी कभी इकोनॉमीज में रिस्क आएगा, इस तरह के बबल्स क्रिएट होंगे, तो पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम अदर स्टॉक्स, अदर ऑल्टरनेटिव्स टू गोल्ड। तो वो फिर यही समझते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। तो दैट इज अगेन डॉट कॉम बबल, 9/11, 2012 रिसेशन, ग्रेट रिसेशन, सॉवरेन डेट क्राइसिस, ब्रेक्सिट, 2018 पुल बैक, कोविड-19, 2022 पुल बैक एंड टैरिफ अनसर्टेनिटी। टैरिफ अनसर्टेनिटी इज करंट पीरियड, और इसमें भी गोल्ड जो है वो सेफ हेवन माना जा रहा है। और टैरिफ अनसर्टेनिटी के कारण ग्लोबल स्टॉक्स देखो कैसे गिरे हैं। ग्लोबल स्टॉक्स ग्रेट रिसेशन में बहुत गिरे, ग्लोबल स्टॉक्स कोविड-19 में बहुत गिरे, ये आप सब जानते हो, ये करंट सिनेरियो है ये पीरियड। इसमें आप देखो कि ग्लोबल स्टॉक्स, इस सब में, इन सब क्राइसिस पीरियड में एक गोल्ड ही है जिसको सेफ हेवन माना गया, और ये एक तरह से हेज था इन अगेंस्ट दीज क्राइसिस। और इसका मतलब क्या निकला कि गोल्ड ज्यादा रिटर्न देता है
ओवर द अदर क्लाइस, लेस वोलेटाइल है। और जब कभी क्राइसिस सिचुएशन आती है तो पीपल शिफ्ट फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव्स टू गोल्ड। देन अच्छा, अब इसमें जाते जाते मैंने देखो बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ली है मैंने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट से। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है एंड माय सजेशन इज यू गो एंड डाउनलोड दिस रिपोर्ट, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। नो, इसमें इन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एसेट एलोकेशन की 50% स्टॉक्स में, 40% फिक्स्ड इनकम में और बाकी ऑल्टरनेटिव्स में। ये इन्होंने कहा जी यहाँ यहाँ ये हो सकता है, ग्लोबल स्टॉक, ईएम स्टॉक, यूएस ट्रेजरी, ये सारा। अब इसके कंपैरिजन में अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स गोल्ड का देखा जाए पोर्टफोलियो, तो गोल्ड का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है कि गोल्ड जो है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल सबसे फेवरेबल गोल्ड का है, गोल्ड पोर्टफोलियो मिक्स, ये है एवरेज पोर्टफोलियो। देन 2.5% गोल्ड, 5% गोल्ड, 7.4, जैसे जैसे गोल्ड का रेशो इस पोर्टफोलियो में बढ़ता जाता है, रिस्क एडजस्टेड रेशो, रिस्क के अगेंस्ट हेज है, रिस्क के अगेंस्ट हेज क्या है, गोल्ड है। दिस इज what this graph is showing. And last of all, the optimal goal allocation varies depending on level of risks in the portfolio. देखो ये 3 पोर्टफोलियो बनाए गए हैं, ये डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, ये मॉडरेट पोर्टफोलियो है, ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। देखो इसमें क्या है कि जितना डिफेंसिव पोर्टफोलियो, ये डिफेंसिव पोर्टफोलियो, दिस इज डिफेंसिव पोर्टफोलियो एंड हेयर बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा, गोल्ड कम एंड देन दिस ऑल्टरनेटिव्स में ज्यादा, और मॉडरेट में एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, एग्रेसिव पोर्टफोलियो इज मोर रिस्क ओरिएंटेड, तो उसमें स्टॉक्स कम हो जाते हैं, स्टॉक्स ये हैं, स्टॉक्स ज्यादा हो जाते हैं, बॉन्ड्स में कम हो जाता है और थोड़ा सा गोल्ड का बढ़ता है। तो फ्रेंड्स क्या रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन में मैं क्या कहूंगा, gold's traditional role as safe haven assets mean it comes into its own during times of high risk. जैसे जैसे हाई रिस्क होगा गोल्ड की वर्थ बढ़ेगी, बट इट्स डुअल अपील एज एन इन्वेस्टमेंट एंड ए कंज्यूमर गुड मीन्स इट कैन जनरेट पॉजिटिव रिटर्न्स इन गुड टाइम्स टू। कि सिर्फ ये नहीं है कि बैड टाइम्स में गुड रिटर्न्स देता है, गुड टाइम्स में भी ये रिटर्न देता है। एंड दिस डायनेमिक इज लाइकली टू कंटिन्यू रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है उसमें फिर ये सिनेरियो रहने वाला है, और गोल्ड जो है वो सबसे सेफ हेवन क्लास होगी। अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट दिस इज टोटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट विच आई एम डिस्कसिंग, नो पर्सनल सजेशन एंड अगेन हम कभी भी किसी पोर्टफोलियो के बारे में आपको सजेशन नहीं देते। जाते जाते आपको इस वर्ल्ड इनकी जो प्रिंट कॉपी है उसका एक व्हाट मेक्स गोल्ड रिजर्व्स, यही मैंने आपको बताया, डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म इंप्रूविंग डाइवर्सिफिकेशन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ रिटर्न, ये सारे ग्राफ्स मैंने आपको दिखाए हैं। देखो ये सारे आपको मैंने दिखाए, और भी बहुत कुछ है, आप इसको पढ़ो। एंड ये सारे आपको गोल्ड नॉमिनल एंड रियल रिटर्न्स, ये सारे आपको मैंने दिखाए हैं। ये स्टोर ऑफ वैल्यू, इसमें भी ये क्या कहता है कि ये मनी सप्लाई और ये गोल्ड, दिस इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ती है, लेकिन आप क्या देखोगे कि गोल्ड प्राइस हैव ट्रैक्ड द एक्सपेंशन ऑफ यूएस मनी सप्लाई, गोल्ड प्राइसेस हैव ट्रैक्ड द एक्सपेंशन ऑफ यूएस मनी सप्लाई, कि जैसे जैसे यूएस मनी सप्लाई बढ़ी है गोल्ड प्राइस भी जंप किया है, नेचुरल है, मोर द करेंसी मोर द इन्फ्लेशन। और उसके साथ साथ आपने अभी पढ़ा भी है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, सो गोल्ड अगेन जंपिंग। सो फ्रेंड्स, what this gold council report says that gold is a strategic asset, it will protect your portfolio, it will give you returns, and during adverse times this is a safe haven. So friends, जाते जाते एक बार फिर देखते हैं कॉमिक्स लाइव क्या कहता है। कॉमिक्स लाइव में गोल्ड का प्राइस देखो इस टाइम 2.63%, लेट मी रिफ्रेश, ये कोई चेंज आया, लेट अस सी,
हाँ जी, देखो विद इन द ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन पीरियड ये 2.67 से -3.22 और सिल्वर वहीं खड़ा 10.5। ये जस्ट कंपेयर टू लास्ट नाइट है। अगर आप पिछले 2 दिन का देखो तो सिल्वर ऑलमोस्ट मोर देन 25% गिर चुका है और गोल्ड ही है। तो इस तरह के अनसर्टन टाइम में विच इज द सेफ हेवन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट कहती है इट इज गोल्ड विच इज द सेफ हेवन। सो फ्रेंड्स, अगेन जाते जाते वी आर नॉट एडवाइजर्स, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो, जस्ट एक रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो हमने डिस्कस की है। सी यू अगेन एंड डू वॉच माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।